Okay, so we were discussing about the interference and a very special and interesting experiment we have discussed in the previous lecture. That was the biprism experiment. You may also read it as the Fresnel's biprism experiment. So what are those experimental conditions, the ray diagram, the scheme of experiment, and the measurement techniques used in this experiment? All that theoretical aspect we have covered in the previous class. Now in this lecture, we will just start solving with some of the illustrations based on the biprism experiment. First of all, we must keep in mind the formula for fringe width and the distance of bands. The intensity distribution calculation will be exactly same as we have done in case of Young's double slit experiment. There is no change in the formulas. The only thing which is going to change is the experimental situation. So if any question related to intensity, related to fringe width, related to interband distances, counting of bands, if these kind of question comes, then it will be solved exactly on those basis which we have already used and established in case of Young's double slit experiment. Now, if the questions are coming on the experimental situations, then this will be a little changed. Okay, we have to specifically use the formulas and the conditions for biprism experiment. So both the type of numericals I will be explaining to you, the numericals based on the experimentation and as well as the numericals based on the general calculations of interference. So let's start with this. I will be putting the first question for today is this. Now in biprism experiment, the light of wavelength 5200 angstrom is used to get the interference pattern. The fringe width changes by 1.33 millimeter. Now this is quite interesting कि यहाँ पे हमको फ्रिंज विड्थ का वैल्यू नहीं बताया बल्कि फ्रिंज विड्थ की चेंज का वैल्यू बताया है. When the screen is moved towards, now screen का मतलब यहाँ पे होगा the microscope, the eyepiece of the microscope through which we are going to see the experiment, towards the biprism by 50 सेंटीमीटर. तो फिर हमसे ये पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्सेस, यानी कि स्मॉल डी कितना है. नाउ गिवन पैरामीटर में ये जो चीज है ये लैम्बडा हो गया. ये 1.33 जो ये बता रहा है मैं इसको लिख सकता हूँ चेंज इन फ्रिंज विड्थ यानी कि डेल्टा एक्स. ये 50 सेंटीमीटर जो बता रहा है ये है डेल्टा कैपिटल डी. कैपिटल डी, डू रिमेंबर दैट बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्सेस. तो एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये पहले स्लिट हो गई अपनी, ये स्लिट के सामने आ गया बाइप्रिज्म और यहाँ पे है ये आई पीस. तो जनरली ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या कॉल करते हैं, कैपिटल डी. अब देखो वैसे देखा जाए तो जो फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का वो बस हम सीधे सीधे अप्लाई करते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. अब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमने लैम्बडा तो नहीं बदलना है, वही लैम्बडा यूज करना है हमने. और डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्सेस जो यहाँ बाइप्रिज्म के पीछे कहीं यहाँ पे बनेंगे, तो वो तो बाइप्रिज्म और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तो ये भी चेंज नहीं होने वाला है. मतलब लैम्बडा और स्मॉल डी कैसा माना जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट. तो इस फॉर्मूले को अगर हम वाकई रेफर करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे लैम्बडा बाई डी डेल्टा कैपिटल डी. गेटिंग इट? Because the change in fringe width is going to happen just because of change in this distance. अब change in fringe width कितना हुआ है, 1.33 मिलीमीटर है, यानी कि 10 to the power minus 3. लैम्बडा 5200 into 10 to the power minus 10. This is small d we have to calculate. Now what is the change in the factor of capital D? Capital D में कितना change हुआ है, 50 into 10 to the power that minus is 50, and in centimeters, so we will just convert it into meter, that will be 50 into 10 to the power minus 2. बस that's it. आपने d का कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा कर देना है. तो स्मॉल d इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं यहाँ देखूंगा ये 1 2 और ये 3 जीरोस हो गए यहाँ पे, ये -7 हो गया. -7 में आप ये -2 ऐड कर दें तो ये -9 हो जाएगा. -9 में ये -3 आप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे तो ये -6 हो जाएगा.
So we will be just getting the number 52 into 5 divided by 1.33 into ये कॉमन मैंने यहाँ पे निकाल दिया 10 to the power minus 6. I hope आप यहाँ पे फौरन इस बात को समझ पा रहे हैं. Yes or no? Yes. Now if we just complete this calculation, so 52 into 5, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ. ठीक है, 4/3 भी कर सकते हैं हम इसको, 10 to the power minus 6. अब इसको सॉल्व कर लें और फाइनल आंसर आप बता दें. Because 4/3 is nothing but 1.33. 195.4. Okay, so we are getting 195. So we are getting 195 point. Something else we are getting here in decimal? 4. 0.4 to 10 to the power minus 6 meter. You can just write this factor as 195.4 micrometer. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. तो आपने देखा ये एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन पर नहीं था क्वेश्चन, ये बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन पर था. तो ये जनरल फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, चाहे बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हो या फिर चाहे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, we just apply the same formula. Okay, now let's go to the next question. Now in this question what is given to us? कि वेवलेंथ जो है वो 4800 एंगस्ट्रॉम है. Distance between slit and biprism is 20 centimeter. So this is A. Distance between biprism and eyepiece is 80 centimeter. So this is B. I'll just draw the diagram, don't worry about it. The distance between the two virtual sources is 0.3. So this is small d. The distance between fifth dark and fifth bright band on the either side of central band. Okay. ये distance हमको पता करना है कि कितना है. So let me just draw a diagram. सबसे पहले तो ये स्लिट हो गई मान लो. स्लिट के जस्ट सामने हम कंसीडर करेंगे बाइप्रिज्म. ये बस दिखाने का एक तरीका है, डायग्राम एक्चुअल स्केल पर वगैरह नहीं है. तो ये बाइप्रिज्म हो गया, ठीक है, ये हो गई स्लिट, ये हो गया बाइप्रिज्म. यहाँ आप कह सकते हो स्क्रीन है, ये आई पीस है, ठीक है. तो बेटा ये वाला डिस्टेंस इसने अपने को बताया है ए, और बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच का डिस्टेंस इसने हमको बताया बी. यानी कि सिंपल बात है, अगर मैं कैपिटल डी यहाँ पे निकालता हूँ बेटा तो कितना होगा ये? A plus B. A plus B, very good. And that is going to result into 100 centimeter. 100 centimeter. That is 1 meter. अब लैम्डा दिया है, ये वो सब बाकी की चीजें दे दी है इसने. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, x निकालते हैं, यानी कि फ्रिंज विड्थ निकालेंगे. So that is lambda d by d. लैम्डा है 4800, 10 to the power minus 10. कैपिटल डी हमने निकाला 1, और स्मॉल डी जो है ये 0.3 सेंटीमीटर है. तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं इनटू 10 to the power minus 2. तो मैं ये दोनों जीरोज यहाँ पे एडजस्ट कर लूं, ये 10 to the power minus 4 ऊपर ले लूं, ये -6 हो जाएगा, -6 -5 हो जाएगा, 48/3. 48/3 कितना हुआ ये? 16. So that results into 16 into 10 to the power minus 5 मीटर. आप अगर ध्यान देते हैं तो ये हो जाता है 0.16 मिलीमीटर. आई होप आप समझ पा रहे हो. Yes. अब बेटा इसने डिस्टेंस हमसे पूछा है, और वो भी किन चीजों का डिस्टेंस पूछा है कि फिफ्थ डार्क और फिफ्थ ब्राइट आइदर साइड ऑफ सेंट्रल बैंड. तो मैंने आपको ये बार बार बोला है कि जो डिस्टेंसेस और इंटेंसिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन है, जनरल फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड कैलकुलेशन है बच्चों, ये हमको वैसे ही करने हैं जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किए थे. तो यू माइट रिमेंबर हम एक पॉइंट मेथड बनाते थे, है ना, और हम इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल कुछ सेकंड्स में सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हम पॉइंट मेथड प्रॉपर्ली यहाँ पे अप्लाई कर लें. तो लेट्स से कि हर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ये क्या कहलाएगा? ब्राइट बैंड. अब इसमें से आप किसी एक नंबर के बैंड को 0th ब्राइट बैंड कंसिडर कर लें. उसके बाद आप गिने कि भाई फिफ्थ ब्राइट बैंड कहाँ आता है. तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है. तो मैं कह सकता हूँ बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक ये नंबर जो आया ये फिफ्थ ब्राइट बैंड आया. आप सेंट्रल बैंड के दूसरे साइड में जाके गिने कि फिफ्थ डार्क बैंड कहाँ है, बिकॉज उसने बोला ऑन द अदर साइड. तो ये फर्स्ट डार्क है, ये गैप में सेकंड डार्क है, ये गैप में थर्ड डार्क है, ये गैप में फोर्थ डार्क है और ये गैप में फिफ्थ डार्क है. तो बच्चों मैं क्लियरली कह सकता हूं कि यहाँ पे जो आ रहा है ना ये फिफ्थ नंबर का डार्क बैंड है.
अब हमसे पूछा है कि फिफ्थ ब्राइट से लेके फिफ्थ डार्क का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बता सकते हैं कितना है? चलें कोशिश करें। 9.5x एक्स ऑफ फिफ्थ ब्राइट से लेकर के फिफ्थ डार्क बताएं कितना है? तो मैं गिनूंगा ना यहाँ से, ये 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x एंड एट लास्ट कितना हुआ? 9.5. वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 9.5x। आपको समझ आ रहा है ना बेटा? ये चीज मैं ले चुका हूँ आपको, अच्छा खासा डिस्कशन मैंने इस पे कर दिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी 9.5 इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट? 0.16। दिस इज x एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन साइन। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ नहीं लिखा यहाँ लिखा। समझ आ रही है ना बात? चलिए मल्टीप्लीकेशन पूरा कर रहे हैं, आपका आंसर आ गया। जस्ट डू इट क्विकली। 1.52. कितना हुआ? 1.52 52. मिलीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो पॉइंट मेथड ये बड़े काम का मेथड है, इससे हमारे बहुत सारे मेजर कैलकुलेशन जो है ये बच जाते हैं। ठीक है ना? आराम से, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना दो। और इन जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, भाई फिफ्थ है, सेवेंथ है, 10th है, मतलब काउंटेबल है। ऐसा नहीं पूछेगा कि 1000 बैंड का डिस्टेंस क्या है एंड सो ऑन। लेकिन हम इन चीजों को अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको वैसे भी नंबर जनरली समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक हो रही है बच्चों बात? Yes. आइए अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसने बोला इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो ये जो चीज है ना, ये 1.2 मीटर, ये कैपिटल डी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एंड 20 नंबर का ब्राइट इज 0.4 सेंटीमीटर। क्या आप बोल सकते हैं कि ये क्या है 0.4? 20x. वेरी गुड, शाबाश। 20x इज 0.4 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ने से पहले तो मैं इस चीज को निपटाना चाहता हूं, पहले इसे खत्म कर लें कि x कितना होगा। तो x हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 20। सो x विल बी इक्वल टू 0.02. 0.02 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। ये फ्रिंज विड्थ निकली। अब ये कह रहा है कि व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस। आप जानते हैं कि ये हम उस वक्त करते हैं जब हमको डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्सेस निकालना होता है, स्मॉल डी हमको निकालना होता है, तो हम इन बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आईपीस एक लेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और लेंस को हम मूव कराते हैं फॉर द कंजुगेट फोसाई मेथड। करेक्ट है ना? Yes. और कंजुगेट फोसाई मेथड में जब हम लेंस को मूव कराते हैं तो एक बार हमको एनलार्ज्ड इमेज मिलती है और एक बार हमको डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, और हम एक फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करते हैं कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये थियोरी हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीखी है। बहरहाल हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस को इंट्रोड्यूस कर देना है जो बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच में होगा 90 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्निफाइड वर्चुअल इमेजेस इज 0.9। तो हमको एक मैग्निफाइड इमेज मिली होगी, उसका डिस्टेंस 0.9 है। अब ये हमसे सडनली पूछ रहा है कि भाई वेवलेंथ कितनी है। बाकी कोई डिस्क्रिप्शन इसने हमें नहीं बताए, बस हमसे ये सवाल कर रहा है कि आप वेवलेंथ कितनी है बता दो। तो आए देखें, इसमें हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि मैं आपको फीलिंग दे सकूं, इसको समझा सकूं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। सो ये हमारा ओवरऑल इनिशियल स्कीम था एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पर स्लिट थी, यहाँ पर बाइप्रिज्म था, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि आईपीस थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर के यहां तक, अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये 120 सेंटीमीटर था। 120 सेंटीमीटर का मतलब ही होता है ना 1.2 मीटर। क्लियर हो रही है बात? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आईपीस, सोर्स एंड आईपीस, सोर्स एंड स्क्रीन। सो ये 120 सेंटीमीटर था। ये यहां तक क्लियर हुआ आपको? Yes. फिर गिवन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो हमने एक्स भी निकाल लिया। अब हमने लेंस लगाया। कहां लगाया हमने लेंस? सोचने वाली बात है। तो आईपीस से 90 सेंटीमीटर दूर बेटा हमने यहां कहीं लेंस लगाया। लेट्स से कि ये पोजीशन ऑफ लेंस है, और ये जो गैप है ना, ये मैं गिनता हूं तो ये 90 सेंटीमीटर है। अब आप एक बेसिक बात समझो, मैं इमेज को तो यहीं देखने वाला हूं, Hmm. तो मुझे बताएं इमेज डिस्टेंस इसमें कितना हुआ?
90. अब ये बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो ऑब्जेक्ट लेंस से जहां पर ये दो वर्चुअल सोर्सेस बन रहे हैं उसी को कहते हैं, तो तकरीबन तकरीबन स्लिट के आसपास ही बनते हैं वर्चुअल सोर्सेस बाई प्रिज्म के पीछे, है ना? तो फिर क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं एक रफ अंदाजे से निकाल रहा हूं, ये स्केल पर नहीं है डायग्राम, ये u है, और अगर मैं बहुत केयरफुली देखूं तो u हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, अगर तुम ध्यान दो तो। सही है? Yes, sir. अब बच्चों एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय size of object is equal to distance of image divided by distance of object. लेंस के केसेस में हम इन चीजों को बहुत रिगरसली डील करते हैं। एनीवेज, साइज ऑफ इमेज, तो ये जो 0.9 सेंटीमीटर हमको गिवन है ना, ये वही D1 साइज है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो D होता है, आप जानते हो ना। और यहां पर डिस्टेंस ऑफ इमेज तो आ जाएगा बेटा V, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा U। तो बस छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर हमको बाकी की चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। सो D1 हमें गिवन है, कितना है D1? 0.9, ये D, U सॉरी V का वैल्यू है 90 और U का वैल्यू है 30। सो जस्ट कैंसल आउट दिस 0 विद 0, ठीक है? सो D विल बिकम इक्वल टू, स्मॉल d विल बिकम इक्वल टू 0.3. 0.3 सेंटीमीटर। तो हमें स्मॉल d मिल गया। But the question is not about finding the value of small d, that is finding the value of distance between two sources. नहीं, ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लैम्बडा निकालना है। लेकिन फिर भी हमें ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जानी चाहिए कि विद द मिनिमम डेटा हम इसको कैसे निकालें। एनीवेज, अब अगर मैं लैम्बडा फिगर आउट करना चाहता हूं तो यहां पे मैं फिर सीधा फ्रिंज विड्थ वाले फॉर्मूले पे आ जाऊंगा, लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। तो देखें लैम्बडा क्या हो गया, x स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। द वैल्यू ऑफ x हमने अभी अभी निकाला 0.02 इनटू 10 टू द पावर -2, डोंट मेक एनी मिस्टेक। कैपिटल D की वैल्यू जैसे, सॉरी स्मॉल d की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, दैट इज 0.3 इनटू 10 टू द पावर -2 अगेन, बिकॉज इट इज आल्सो इन सेंटीमीटर, एंड एट लास्ट द वैल्यू ऑफ D इज 1.2। तो बताएं लैम्बडा का आंसर क्या आएगा? तो सिंपल है, इसको पहले हम कर देते हैं 2, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा -4, -5 -6 -7, ठीक है, -7 हो जाएगा ये। तो दिस विल टेक 6 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक हो गई बात? देख लो, -2 -3 -4 -5 -6 -7। आगे समझ में आपके? Yes. अब इसे डिवाइड करें आप, 5 into 10 to the power. so that will become 5 into 10 to the power -7 मीटर, या चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो बेटा 5000 into 10 to the power -10 मीटर, which now can be written as 5000 एंगस्ट्रॉम। तो हो गया इसका आंसर। ठीक हो रही है ना बात? Yes, sir. Let's take the next question. In biprism experiment with sodium light, fringe width, तो डायरेक्टली यहाँ पे फ्रिंज विड्थ हमको गिवन है, तो ये जो चीज गिवन है ये यहाँ पे आप सीधे सीधे कह लो कि ये x वैल्यू गिवन है हमको। तो दिस इज x 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, तो ये 100 सेंटीमीटर जो गिवन है हमको, ये कैपिटल D हो गया। Now on introducing a convex lens 30 centimeter from the slit, two images of the slits are seen 0.7 apart at 100 centimeter from the slit. Calculate the calculate the wavelength of sodium light. तो हमको यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है। सो अगेन मैं उसी बेसिक फॉर्मूले पे स्टिक करूंगा, लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। सो लैम्बडा विल बी इक्वल टू x स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। अब x का वैल्यू हमें गिवन है, कैपिटल D भी पता है, the only thing which we need to determine is the value of small d. So just for your understanding, I'll be just drawing a diagram. So
टू गिव यू अ फीलिंग, हालांकि डायग्राम बनाना ये कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की। तो हमने लेंस को कहाँ इंट्रोड्यूस किया, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। तो लेट्स से कि हमने लेंस को यहाँ कहीं लगाया है, ये पोजीशन है लेंस की, और ये जो गैप है ना यहाँ से लेके ये u होता है और ये 30 है। अभी जो बचा गैप है ये कितना होगा, 70। वेरी गुड, शाबाश, ये 70 सेंटीमीटर हो गया। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो गैप है ना वो तो स्लिट और आईपीस के बीच का गैप है 100 सेंटीमीटर, उसमें से 30 यहाँ चला गया तो बचा तो 70। नाउ यू अगेन यूज द सेम फॉर्मूला, d1 upon d is equal to v by u. Yes, I'll be using the same formula, that is the size of image divided by size of object is equal to distance of image by distance of object. Is it okay? Yes. So this I may say is 0.7, ये small d मुझे पता करना है, v का वैल्यू है 70 और u का वैल्यू है 30। तो एक क्विक सॉल्यूशन से मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि d का वैल्यू भी 0.3 आ रहा है, करेक्ट है ना, 0.3 सेंटीमीटर। Is it okay? Yes. Now just use these numbers here and find out the value of lambda. Now x is 0.0195 into 10 to the power minus 2 because of centimeter. Small d हमने अभी भी निकाला, that is also in centimeter, so that will be 10 to the power minus 2. Capital D is 100 in centimeter, तो again I will just correct it with 10 to the power minus 2. तो ये denominator तो 1 हो गया, उसका कोई टेंशन नहीं है, because this will turn out to be 100 in 10 to the power minus 1, ये 1 हो गया। 0.3 को 3 कर दो तो ये 10 to the power minus 3 हो जाएगा, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 195 into 3, 195 into 3 into 10 to the power minus 9। चलिए 195 into 3 कितना हो रहा है, 585। 585, 585 into 10 to the power minus 9 meter. You can just write this figure as it is but change the unit to nanometer, चलेगा ये, ठीक है ना। या आप इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो, 5850 into 10 to the power minus 10, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ना आपने, तो फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 5850 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर नैनोमीटर में बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल वेटेज उसको दिया जाएगा, कोई खास बात नहीं। बट however it can also be expressed in the units of angstrom. So this is how we manage these questions. Let's take the next one. Okay with this? Now in this question we have interference bands are produced by the Fresnel's biprism in the focal plane of reading the microscope. रीडिंग माइक्रोस्कोप मतलब एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें स्केल लगी होती है, जिसके क्रॉस वायर्स को हम पोजीशन करने के बाद उसकी डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम रीडिंग माइक्रोस्कोप इन जनरल बोल सकते हैं। द फोकल प्लेन इज 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। कैन यू गेस व्हाट दिस 100 सेंटीमीटर इज? कैपिटल D। शाबाश, दिस इज कैपिटल D. Convex lens is inserted between the biprism and the microscope and it gives two images of the slit for the two positions of the lens. तो सेपरेशन बिटवीन देम इज, तो पहली बार जब हमने इसको देखा तो ये हो गया D1 और दूसरी बार हमने देखा तो ये हो गया D2, दो अलग अलग पोजीशन के लिए D1 D2। समझे नहीं समझे बेटा? अब हमें निकालनी है फ्रिंज विड्थ। तो बच्चों फ्रिंज विड्थ के लिए तो अपने पास बिल्कुल जनरलाइज फॉर्मूला है, कोई टेंशन नहीं है। कहां अटक रहे हैं? लैम्बडा है, कैपिटल डी भी है, कहां अटक रहे हैं? स्मॉल डी में अटक रहे हैं। तो स्मॉल डी कैसे निकालेंगे? तो यहां पे हम स्मॉल डी का वो डेराइव्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम बाकायदा कंजुगेट फोसाई मेथड को सॉर्ट आउट करके पूरा लास्ट में ऑब्टेन करते हैं। सो दैट स्मॉल डी इज नथिंग बट इक्वल टू रूट D1 D2। याद आ गया? सो नाउ इन दिस सिचुएशन D1 का वैल्यू जो हमें बताया जा रहा है ये 4.05 है, इनटू D2 का वैल्यू जो हमें बताया जा रहा है ये 2.90 है। जस्ट मेक द मल्टीप्लिकेशन and tell me what we are getting here. Just do it quickly.
यस आई गेस 4√3 के आसपास 12 पकड़ लें इसको 4 इसको 3 पकड़ लें तो 12 हो जाएगा 12 4√3 फिर भी आप मल्टीप्लीकेशन करके मुझे एग्जैक्ट नंबर बताओ कितना आ रहा है 11.745 11.745 you're suggesting an answer of 11.745 अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 3.4 so we are getting the answer to be equal to 3.4 now this is in millimeters so we just have to give the unit as millimeter however we need or we can just convert it into meter by 10 to the power minus 3 factor okay now further part of calculation is very straightforward x lambda हमें given है 5886 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर तो मीटर में करना है तो सीधे इसको क्या कर दो minus 10 this is going to be 100 into 10 to the power minus 2 this capital D is 100 हमने मेंशन किया देखो यहाँ पे ये 100 now small d तो हमने अभी निकाला था that is 3.4 into 10 to the power minus 3 अब ये सारा फैक्टर तो आपस में ही निपट गया ये 1 हो गया -3 करने से पहले इसको 34 into -4 कर दो -4 ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा -6 मतलब एट द एंड मुझे जो डिवीजन मिलेगी वो ऐसी मिलेगी 5886 divided by 34 into 10 to the power minus 6 बस डिवीजन पूरी कर लें एंड देन यू आर डन विद दिस कितना आ रहा है 173.1 so it is just coming 173.11 into 10 to the power minus 6 meter or to the same answer you can write 173 around 173 that one I can just ignore in micrometer ये इसका expected answer now coming to another question but before going to that question let me just give you the chart of all those formulas which we have already worked out तो ये सारे चार्ट हैं ये मतलब मैंने सारे कलेक्शन कर दिए इन फॉर्मुलीज को एक जगह में ले आया ताकि whenever needed we can just make a pick of or make a choice of a formula as per need, as per requirement, as per the question data available to us. अब इसमें जो मोस्ट कॉमन फॉर्मुलीज हैं वो ये कैपिटल डी वाली हैं कैपिटल एक्स ये स्मॉल डी वाला ये सब बिल्कुल जनरलाइज फॉर्मूले हैं इसमें कोई खास बात नहीं है बट इसमें कुछ एडिशनल फॉर्मुलीज भी यहाँ पर हैं जैसे कि लेंथ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न निकालना डेविएशन को फाइंड आउट करना मैंने आपको कल भी ये बताया था मींस प्रीवियस लेक्चर में भी ये कहा था मैंने कि इन फॉर्मुलीज को डेराइव करना नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं है इनको इनसे व्हाट इज नीडेड और व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट कि आप इन फॉर्मुलीज को याद रखें ताकि अगर कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप उसको कोरिलेट करके वहां पे सॉल्व करो ठीक है बाकी जो चीजें डेरिवेशन में रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस करवा दी हैं अब बीच में से अचानक से मैं ये चार्ट आपको क्यों दे रहा हूं बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक पूरा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं सो आई विल बी पिकिंग सम ऑफ द फॉर्मुलीज फॉर द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस चार्ट सो जस्ट डू रिमेंबर हियर द क्वेश्चन कमिंग सो ये है क्वेश्चन अपना तो काफी बड़ा सा पैराग्राफ है एक और फिर उसके बाद उसके नीचे मल्टीपल क्वेश्चंस हमको दिए गए हैं एंड वी विल बी जस्ट सॉल्विंग देम वन बाय वन तो एक बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हुआ उसके पूरे डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ बताए गए हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है कितना एंगल है एंड ऑल दैट सो बाइप्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है यहाँ अल्फा कहते हैं हम उसको आमतौर पर ठीक है जो कि काफी छोटा एंगल होता है तो वो हमको गिवन है ये सो ये हो गया अल्फा नाउ द बाइप्रिज्म इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स तो स्लिट से जो है ना इसको 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो आप कह सकते हो ये ए है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज 140 सेंटीमीटर तो आप बेटा कह सकते हो कि ये जो चीज है ये क्या हो गई डी क्या आप मुझे बता सकते हो इस डायग्राम में ही कि अगर मैं बी को निकालना चाहता हूं बी तो बी कितना होगा 110 सेंटीमीटर वेरी गुड बिकॉज यहाँ पे हमको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कैपिटल डी इज इक्वल टू ए प्लस बी अब कैपिटल डी है अपना लाइक 140 उसमें का अगर ए पार्ट यानी कि 30 सेंटीमीटर में निकाल दूं तो मुझे बी मिल जाएगा 110
फिर मैंने देखा जो वेवलेंथ गिवन है मुझे वो लैम्बडा है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। व्हेन कन्वर्जिंग लेंस का मतलब तो वही होता है बच्चों, Convex. कॉन्वेक्स लेंस अपना सीधा साधा, is moved between the biprism and the screen to get the two images formed. The separation between the two images of the two positions of the lenses are found to be, तो बेटा ये जो दो चीजें हैं ना, ये D1 D2 हैं, करेक्ट है ना। इसमें से ये बड़े वाले को मैं D1 बोल देता हूँ और छोटे वाले को D2 बोलता हूँ, हालांकि कोई ऐसा खास कंपल्शन नहीं है, बट जस्ट एक आर्गुमेंट के तौर पर। सो अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट बिफोर गोइंग टू दोज क्वेश्चंस मैं इस अवेलेबल डेटा का इस्तेमाल करके कुछ पहले एलिमेंट्री सॉल्यूशंस बना लूं। जैसे कि सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे स्मॉल डी निकालना चाहूंगा, तो स्मॉल डी अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों D1 D2, सही है ना। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू, दिस विल गो अंडर रूट में 0.9 इंटू 1.6। आप सोचो 0.9 को अगर मैं 9 कर दूं और 1.6 को 16 कर दूं, तो 9 रूट से बाहर आएगा 3 और 16 रूट से बाहर आएगा 4। 4 इंटू 3 विल बिकम 12. और 10 टू द पावर -2 का एडजस्टमेंट अगर मैं कर दूं तो ये 1.2 हो जाएगा, 1.2 मिलीमीटर। आप चेक कर सकते हो, इतना आंसर आएगा इसका। ओके, सो स्मॉल डी आ गया यहाँ पे। अब बिफोर गोइंग टू दोज क्वेश्चंस ऑफ दिस पैराग्राफ, मैं एक और चीज एडिशनली यहाँ पे निकाल के रेडी कर लेता हूँ कि भाई व्हाट इज फ्रिंज विड्थ इन दिस केस। So we know by formula lambda capital D by small d. So if I just continue with lambda, so this is going to be 6000 into 10 to the power -10. Capital D is 140 into 10 to the power -2 because it is in centimeter. And small d just now we have estimated that is 1.2 into 10 to the power minus millimeter के हिसाब से -3। ठीक है, now I will adjust the numbers. इसको मैं कर देता हूँ 12 के लिए ये हो जाएगा -4 ऊपर आ जाएगा, +4 +4 +5 +6 +7 +7 -12 में से अगर मैं +7 निकाल देता हूं तो बचता है 10 to the power -5, सही है ना। -5 और ये एक जीरो भी आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और इसको बोल दो -4। 140 का भी जीरो मैं खा गया यहाँ पे और उसको भी मैंने -4 कर दिया। अब ये बचा 6, 14 और 12। ये 6 काट दो, 12 से ये कटेगा 2. 2 से, 2 और 14 काट दो 7, तो ये हो गया 7। और अगर मैं ठीक ठाक इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 0.7 मिलीमीटर। आई होप आप इन सिंपल कैलकुलेशन को इजीली गेस कर पा रहे हो। ओके, Yes. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू अस। कैसे क्वेश्चंस हमको फिर यहाँ पे गिवन है। तो ये जो 2-3 छोटी मोटी चीजें मैंने अभी कैलकुलेट की ना, इसमें का कोई भी क्वेश्चन एक्चुअल में हमको गिवन नहीं है, बिल्कुल अलग ही तरीके के क्वेश्चंस हमको यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। आप देखें एक एक करके, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। ये कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है। वो जो लेंस तुमने लगाई थी बीच में उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप उसी वक्त सॉल्व कर पाओगे जब आपको बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का पूरा स्कीम, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन आपके जहन में है, तो ये आप मैनेज करोगे इसको, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा ये। तो आओ फोकल लेंथ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम लेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प यू। ये स्लिट हो गई मान लो, ये यहाँ कहीं बाइप्रिज्म हो गया 30 सेंटीमीटर के गैप पे। मैं जानता हूं ये जो गैप है ना, ये तो 30 है, ये तो पक्का है ना, ये गैप 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये यहाँ पे ना आईपीस है या आप कह लो स्क्रीन है जिसको हम देखने वाले हैं, और ये जो गैप है मैं जस्ट इसको यहाँ मेंशन करके रखना चाहता हूँ सो दैट कि फर्दर कैलकुलेशन में मुझे कोई गड़बड़ ना हो। ये 110 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, लेंस को इंट्रोड्यूस करना है 2 बार, ठीक है ना। हमने 2 बार लेंस को इंट्रोड्यूस किया, मतलब 2 अलग अलग पोजीशंस के लिए। तो लेट्स से कि मेरी पहली पोजीशन ये वाली थी, यहां पे मैंने लेंस को इंट्रोड्यूस किया एंड आई विल जस्ट कॉलिंग दिस एज द पोजीशन 1 ऑफ द लेंस। ठीक हो गई बात। Yes. अब हो सकता है कि लेंस की इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कुछ इमेज डिस्टेंस बना हो, कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना हो, एंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो कितना है, हमें पता ही नहीं है कि वो कितना है।
आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो 30 आप पकड़ लो या इधर लाइक 30 कैंसिल करके, या 30-50 पकड़ लो, 50 कैंसिल करके तुम इधर 90 पकड़ लो या 80 पकड़, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। बेसिकली हमें पता ही नहीं है कि u और v कितने हैं, ठीक है ना। बट वी हैव वन फॉर्मूला। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर मैं वो फॉर्मूला लिखता हूं, तो आपको याद है हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, d1/d इज इक्वल टू v/u, करेक्ट है। Yes. अब d1 जो मैं चॉइस कर रहा हूं ना, ये मैं इसमें से कुछ भी ले सकता हूं, कोई भी ले सकता हूं। मैं तो चलो 1.6 ले लेता हूं मैं इसको, ठीक है, बड़े वाले को, क्योंकि मैं पहले मैग्नीफाइड इमेज करने के लिए लेंस को जो है ना बाइप्रिज्म के नजदीक रखने वाला हूं। एनीवे, तो मैंने इसको ले लिया 1.6। स्मॉल डी हमने कितना निकाला था, 1.2 v/u। स्मॉल डी तो हमने 1.2 निकाला है, ये देखो, ये तो पता चल चुका है हमको कितना है, ठीक है। 16/12 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ये। 4/3 इज इक्वल टू v/u। तो यहां से बच्चों हमें पता चला कि v इज इक्वल टू 4/3u। क्लियर हो गई बेटा बात। Yes. बट मैं इतना 100% श्योर हूं कि जब मैं v और u को ऐड करूंगा तो आंसर 140 ही आएगा, क्योंकि लेंस की पोजीशन से आईपीस तक v होता है। सही है, सही है गलत है? लेंस की पोजीशन से आईपीस तक मतलब जहां मैं इमेज देखने वाला हूं, तो इमेज डिस्टेंस हो गया ना। Yes. और लेंस की पोजीशन से स्लिट तक ये क्या होता है, U. u होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। अब ये दोनों मिला के तो मैं जानता हूं ना कितना है, 140. तो ये तो हमें पता है कि ये 140 है। अब v का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, जो v के लिए हमने इक्वेशन बनाई है, तो हमने इसको यहाँ पुटअप कर ली, तो ये हो गया 4/3u प्लस u इज इक्वल टू 140। सो दैट विल बिकम 7u डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 140। और इसे सॉल्व करते ही मुझे पता चलता है कि u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो इसका सॉल्यूशन बनाओ तो v इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। Yes. ठीक है ना, u की वैल्यू आप यहां मेंशन कर लो, उसको सॉल्व करो, तो v का आंसर भी आ गया आपको। क्लियर हो रही है बच्चों बात। Yes. बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि ये सब क्या है, द क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग द फोकल लेंथ। तो आपने यहाँ पे एक इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसे हम कहते हैं लेंस इक्वेशन। 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 11th में पढ़े हैं और 10th में भी पढ़े हैं। ट्राई टू रिकॉल दिस मिरर इक्वेशन, लेंस इक्वेशन 10th में भी पढ़े हैं हमने। यस और नो? Yes. तो अब ये फोकल लेंथ हमें पता करनी है 1/f इज इक्वल टू 1/v तो है 80 माइनस 1/-60। अब बोलेंगे सर -60 क्यों लिखा? तो आपको याद है हम लोग 11th में देखा करते थे कि भाई साइन कन्वेंशंस के साथ हमको ऑप्टिक्स की सारी वैल्यूज को पुट अप करना होता है। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, या आम जुबान में बिल्कुल आपको बोलें तो लेंस के पीछे जो डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो नेगेटिव लेने पड़ेंगे, और लेंस से आगे जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब लेंस के आगे v मेजर होता है तो v पॉजिटिव लेंगे, और लेंस के पीछे u मेजर होता है तो उसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes. ओके, आई होप आप इन बातों को रिलेट कर पा रहे हो। तो ये 1/f इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80 इंटू 60 और ऊपर हो जाएगा 80 प्लस 60। प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस माइनस एडजस्ट होकर के प्लस हो जाएगा। So if you just continue with the calculation, you will be getting 1/f is equal to 80 into 60 will become equal to what? 140. This will become 4800. ठीक है? So if I just cancel it out and if I just divide it with the factor of 2, so I may get 1/f is equal to 7/240. सही जा रहा है? Therefore f is equal to 240/7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, और इसी को हम ऑप्शंस में सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे ये आंसर बी ऑप्शन में मिल जाता है। सही हो गई बात? Yes, sir. तो देखें, एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपको पता है तो ये आप क्वेश्चन मैनेज करोगे, नहीं तो फिर तो क्या, फिर रह जाएगा क्वेश्चन, गड़बड़ हो जाएगी, कर ही नहीं पाओगे आप।
चलो अब इसके फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. देयर आर सेवरल क्वेश्चंस टू इट. 5 क्वेश्चंस हैं इसमें, 5 क्वेश्चंस आर देयर. अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. तो अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि गैप बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द लेंस क्या है. गैप कितना है उसका. तो मैं इस डायग्राम को दोबारा आपको बनाता हूं तो ये फौरन ही आपको समझ में आएगा, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी. तो बच्चों ये लेंस है, सॉरी ये आप कह सकते हो कि स्लिट है. फिर उसके बाद ये जो चीज है ये बाइप्रिज्म है, ये स्लिट हो गई, ये बाइप्रिज्म हो गया. अब हमने पहले जो लेंस को इंट्रोड्यूस किया था वो यहां इंट्रोड्यूस किया था. लेट्स से कि हमने यहां इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद ये चीजें जो हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप हमारी यहां है. अब इनिशियल जो डिस्टेंसेस हैं तो वो ऐसे हैं कि ये 60 है और ये 80 है. ये तो हमने निकाला ना अभी, ये देखो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेक्ट है ना. मैं ये कह सकता हूं कि ये लेंस की पहली पोजीशन है. अब दूसरी पोजीशन में हम लेंस को थोड़ा आगे भेजते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कराते हैं उसको. तो लेट्स से कि लेंस की जो दूसरी पोजीशन है, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, तो लेंस की दूसरी पोजीशन ये है कॉन्जुगेट फोसाई पोजीशंस के हिसाब से, जहां पे हमको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी. बट अब इस बार अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं ना बच्चों, तो जरा समझने की कोशिश करें. 60, ये 60 हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 80. 80 हो जाएगा. समझने की कोशिश करें आप, पक्की बात है. Yes. तो लेंस की दोनों पोजीशन का गैप अगर मैं देखता हूं ना बेटा, यहां से लेकर के यहां तक 20. तो 20 है वो. बस सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पहले 80 था, अब यहां से लेके यहां तक 60 है, तो गैप कितना कवर हुआ होगा, 20. तो आपका आंसर तैयार हो गया बिना किसी कैलकुलेशन के. खाली एक्सपेरिमेंट ढंग से समझना है हमने. एक्सपेरिमेंट आएगा तो ही, नहीं तो फिर क्या, फिर बात रह जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी. आप कर ही नहीं सकते बगैर एक्सपेरिमेंट के. जाने इस बात को, इन प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट ही नहीं कर सकते. आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से दिमाग में बैठना पड़ेगा. और प्रीवियस लेक्चर में मैंने 1 आवर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया उसका कि पूरा बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होता है, उसमें मेजरमेंट्स कैसे किए जाते हैं, वर्चुअल सोर्सेस कैसे बनते हैं, डिस्टेंसेस कैसे मेजर किए जाते हैं, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. यस, ठीक हो गया. Yes, sir. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, यानी कि हमको म्यू निकालना है. सो म्यू निकालने के लिए मैं खास आपको उस टेबल पे ले जाता हूं जहां पे हमने बाइप्रिज्म से रिलेटेड अलग अलग फॉर्मूलीज को देखा है. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये फॉर्मूला पिक कर रहा हूं. ध्यान से देखो, d is equal to 2a mu minus 1 into alpha, the refracting angle of the biprism, the corner angles, the acute angles of the biprism you may say. तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं ताकि मैं म्यू को यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकूं. तो देखें, इसके सॉल्यूशन बनाने के लिए जैसे आपको फॉर्मूला अभी बताया गया, d is equal to 2a mu minus 1 into alpha. अब आप थोड़ा सा पीछे जाएं और बताएं मुझे a का वैल्यू कितना है. 30. यस, 30. जरा माइक अपने ऑफ रखें प्लीज. हाँ, तो ये 30 है, a का वैल्यू 30 है. यहां से भी हमको समझ में आता है द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म इज a and the remaining distance is b till the screen you may say or till the eyepiece you may say. So this is 30. चलिए नंबर्स को पुट अप करना शुरू करते हैं. d हमने कैलकुलेट किया था बिल्कुल बिगिनिंग में, 1.2 मिलीमीटर दिख रहा है. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू. ये है 1.2 मिलीमीटर, तो ये हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 2, ये 30 इंटू 10 टू द पावर -2, बिकॉज मीटर का मैंने सेंटीमीटर करना है केयरफुली. तो ये 10 टू द पावर -2, ये फैक्टर हो गया बेटा म्यू -1, ये तो पता करना है हमको. इनटू अल्फा कितना है, तो आप यहाँ क्वेश्चन में वापस आए, डायग्राम को देखें, तो ये है अल्फा 0.15 डिग्री. अब यहां ना हमसे एक मेजर मिस्टेक हो सकती है कि हम इसको डिग्री में ही रख करके कैलकुलेशन पूरा करें, जबकि ये गलत हो जाएगा.
डिग्री में रखना हमको इसको बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमको यहाँ पे खास इस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के चक्कर में क्या करेंगे, पाई बाय 180 इस फैक्टर से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डिग्री है अब किस में कन्वर्ट हो गया, यस किसमें कन्वर्ट हो गया बोले तो, रेडियन। रेडियन। हाँ ध्यान है ना सभी का। ओके सो दिस गेट कन्वर्टेड इनटू रेडियन। अब देखें फिर बाकी सारे नंबर्स तो बस मैनेज करने हैं, कैलकुलेशन पूरा करना है। अब मैं इसमें अपना वक्त खराब नहीं करता हूं। आप अगर म्यू के लिए पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर बाद में ये म्यू -1 फैक्टर में का 1 उधर ले जाके ऐड कर देते हैं, तो एज आई एम रिमेम्बरिंग इसका जो आंसर आता है ये आता है 1.76। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म जो है ये 1.76 के आसपास आ जाता है। ठीक हो गई बात। Yes. नाउ वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीक्वेंस। इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज यूज करना है कि कितने टोटल फ्रिंजेस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बनेंगे। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल, मैं आपको टेबल पे पहले वापस ले जाता हूं। अब देखो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर मुझे निकालना है तो मुझे करना है L/X। अब आप सोच सकते हैं सर ये L क्या है, तो आओ मैं आपको समझाता हूं, एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन यहां दे देता हूं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास स्लिट थी, फिर कौन था, बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म के बाद मान लो कि हमारे पास एक स्क्रीन है, जस्ट इमेजिन करो। स्क्रीन इन द सेंस यू में से अ काइंड ऑफ आईपीस जिसको ऊपर नीचे मूव करके आगे पीछे मूव करके हम बैंड्स देख रहे हैं। अब हो सकता है कि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के जो बैंड्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पर इधर उधर ऑक्यूपाई करने लगे। तो L वो लेंथ ऑफ द स्क्रीन है जिस पर हमें फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के जो फ्रिंजेस हैं ऐसा वो इंफिनिटी तक नहीं जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर लेंथ में ही आते हैं। L is the length on the screen on which the fringes can be observed। और उसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा L/X। अब हम बोलेंगे X तो हमें पता है, चलो ठीक है X किसी तरीके से हम मैनेज कर लें। L तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, L जो है ना वो तो हमें बताया ही नहीं क्वेश्चन में, तो हाउ डू वी गेट दैट आंसर। तो उसके लिए ये फॉर्मूला नंबर 7 पे आ जाओ। L कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला 7 का इस्तेमाल करेंगे और L निकालेंगे, BD डिवाइडेड बाई A, और फिर फॉर्मूला 8 का यूज करेंगे और नंबर ऑफ फ्रिंजेस फिगर आउट कर लेंगे। क्लियर हो रही है बेटा बात। Yes. तो आओ सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ। तो आपको मैंने अभी भी बताया फॉर्मूला BD डिवाइडेड बाई A। अब आप जाओ डायग्राम में पीछे वापस, B कितना है 1 time. 110, A कितना है 30. 30 और D कितना है 1.2. 1.2। तो जस्ट पुट अप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। इसके डेरिवेशन में बिल्कुल जाना नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है। तो B 110 इंटू 10 टू द पावर -2, D का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और A का वैल्यू हमें बताया जा रहा है 30 इंटू 10 टू द पावर -2। तो बस हम इसे सॉल्व करते हैं, -2 कट गया, ये 0 और ये 0 भी कट गया, ये 3 मैंने यहां से काट दिया, ये हो गया 0.4, 0.4 इंटू 11 कितना होगा 4.4. 44, या हम लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो गया हमारा लेंथ इन मीटर, मतलब पैटर्न इतना लेंथ का आएगा 1.1 mm, सॉरी 4.4 mm इतना पैटर्न आएगा। बट हमें तो नंबर ऑफ बैंड्स पूछा है ना इसने, नंबर ऑफ बैंड्स का डिस्क्रिप्शन हमसे पूछा है इसने। सो जस्ट गो बैक टू द फॉर्मूला, टेबल पे आओ वापस, नंबर ऑफ बैंड्स, टोटल नंबर ऑफ बैंड्स कितने दिखेंगे, तो आंसर क्या है L/X. तो लेट्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, सो दैट विल बी L/X। अब हमें x भी तो पता होना चाहिए कितना है, तो हमने x पहले ही निकाला था, देखो ये 0.7 mm। ठीक हो रही है बात। तो चलो आओ नंबर्स पुट अप करते हैं। L का वैल्यू हो गया 4.4 इंटू 10 टू द पावर -3, और x का वैल्यू है 0.7 mm, मतलब ये भी हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -3। करेक्ट है ना। तो सबसे पहले ये -3 काट दो, बेसिकली इसका आंसर तो आएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 0.7। आप इसको एडजस्ट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 44/7।
That is as per option C. ठीक हो गई बात? Yes, sir. So these are some questions which I am interested. I was actually interested to take regarding the biprism experiment. Now these questions give us ample of practice. Particularly the last question, which was based on a paragraph, it gives us an ample of practice कि how the experiment is performed, how the distances are measured. बाकी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो भी हमने यंग्स डबल स्लिट पे क्वेश्चंस बनाए थे, जो क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप चाहे वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हो, चाहे बैंड की काउंटिंग के हो, चाहे डिस्टेंस की काउंटिंग के हो, ओके, वो चाहे वो फ्रिंज विड्थ के रेफरेंस में बनाए जाए हों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पे एज इट इज अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो क्वेश्चंस जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंटल डिटेल के साथ हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटेशन पर वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, उनके लिए हमको थोड़े से डिफरेंट फॉर्मूलेज को अप्रोच करना पड़ेगा। बाकी जनरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटेंसिटी एंड फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज डिस्टेंस कैलकुलेशंस वो सब वैसे ही करने हैं जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किए थे। So this was the second experiment which confirms the happening of interference. The first one is the Young's double slit experiment, and the second one is the biprism experiment. Now, in the coming classes, hopefully we will be working interference due to thin films, interference due to mirrors, interference due to split lens. और तीन techniques हमको इसमें पढ़नी है. Those techniques we will be covering hopefully in the coming classes. तो रुक जाएं. Yes. Yes, sir.